हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, पीएचडी नहीं करनी। ओके, इस तो बाद इतना रिलेटेड की क्वेश्चंस बन गए ने। डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी की हो गया। ठीक है, टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन कि जीएसटी नु की केड़े-केड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर, ज़्यादा नहीं कि पैराग्राफ टाइप, वन लाइनर कि ये चीज़ां तुसी की पॉइंट जेडे याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब स्मार्ट वर्क करना है, की पॉइंट याद रखने हैं। ओके, तो उस तो बाद असीं करांगे क्वेश्चन। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪੀਟੀ+ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਮਤਲਬ ਐਮਸੀਕਿਊ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਸੀਕਿਊ 100 ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾ, 200 ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ जीएसटी की ਹੁੰਦਾ ਵਾ, जीएसटी ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ कि थोड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਕੀਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਮਤਲਬ 5% ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ। ठीक है, लेयर्स बारे, ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर लेयर्स बारे पूछा उन्होंने। ठीक है, जो बेसिक्स मैंने जियोग्राफी करवाई सी उस तो क्वेश्चन आए, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। अगर तुम स्टैटिक पोर्शन भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, अगर बेसिक्स भी कर जाओ, अगर 100 चो 80 अगर जीएस है, ठीक है, 80 मैं मैथ रीजनिंग की गल नहीं कर रही। ठीक है, अगर जीएस की गल करिए तो तुम 80% भी नंबर मतलब मार्क्स ले सकते हो। अगर मान लो कि 20% अगर करंट अफेयर्स आता, ठीक है, तो फिर भी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਓ एडवांस लेवल मतलब करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का ये नहीं है कि दुनिया का हर एक चीज़ पढ़ लेनी। ठीक है, जो भी करंट रिलेटेड मतलब जो इन सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, अगर गवर्नर न्यूज़ है तो
पिछे जाके पॉलिटी गवर्नर बारे पढ़ो, ठीक है। न्यूज़ में जो भी चलता ਉਹਦੇ बारे ਉਹਨਾਂ रिलेटेड पढ़ो, ठीक है। ज़्यादातर ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिदा COP इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 26 जो ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ इंग्लैंड में ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है। ये न्यूज़ में चल रही सी उदों, तो इन्होंने रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन डालता, ठीक है। और स्कीम विवाद, ठीक है, जो टैक्सेशन स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम, ये उन्होंने डालती, ठीक है। उन्हें स्कीम टैक्स नाल रिलेटेड है, ओके। इस करके जो तुसीं हुण पढ़दे हो टैक्सेशन, डायरैक्ट टैक्स, इनडायरैक्ट टैक्स सारे जानते हो। अगर तुसी कंपीटीशन चो, ठीक है, तुसी मतलब अलग मतलब कुछ अलग करना चाहते हो, अलग मतलब दूसरे स्टूडेंट्स तो अगे जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता कंपीटीशन है, एक एक नंबर ना फर्क पएगा। तो फिर डायरैक्ट टैक्स की हुंदा, टाइप्स ऑफ टैक्स की हुंदे आ, ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स सारे जानते, ठीक है। थोड़ा उस तो उपर तुहानूं पढ़ना पएगा अगर तुसी मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड होना, वधिया मार्क्स लैने, वो तां ही आणगे जदों तुसी बेसिक्स करन तो बाद थोड़ा जिहा एडवांस लैवल वाला करोगे, ठीक है। दूसरा सब तो वड्डी मिस्टेक कॉन्सैप्ट हो गए, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए कि जो भी तुसी पढ़ते हो थोड़ा जिहा एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्रा का ये मतलब नहीं एक तुसी टैक्स लिया तो टैक्स की पूरी PH मतलब किताब फड़ ली, ठीक है। हुण कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी है पिछले एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं है कि तुम एक्साइज ड्यूटी दी किताबां खरीद लिया और सारी एक्साइज ड्यूटी पढ़ी जा रहे, ये नहीं। एग्जामिनर चाहता कि तुहानूं बेसिक्स पता हो, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए है। तुसी अगर चैक करना कि इस फील्ड में जानते हो, वो बारे तुहानूं बेसिक्स नॉलेज है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, भावें तुम UPSC का एग्जाम दे रहे हो, बेसिक्स, ठीक है। ज़्यादा वो मतलब ये नहीं टफ लैवल कि हर एक चीज़ पूछ रहे हैं, कितने भी पूछ रहे, ठीक है, बेसिक्स चीज़ां आउंदियां। दूसरा मैं एक और स्टूडेंट सी, उन्होंने कहा कि मतलब कि असीं मैडम वधिया तैयारी की सी, तो एक इंस्टीट्यूट की उन्होंने वीडियो देखी सी, उहदे विच मतलब उन्होंने दस्सिया सी कि तुक्के किद्दां लाईदे, ठीक है। तो वो उदा ही मतलब उन्होंने तुक्के लाए, मतलब ए दे इन्ने नंबर कर, मतलब ABCD इन्ने ऑप्शन कर ले, फिर बचे हुए सारे तुक्के लाते। देखो तुक्के तां लगाओ अगर तां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर मतलब पता है तुहानूं कि सारे भावें सही करो गलत करो तां मार्क्स नहीं कटना, फिर तुक्के लाओ, फिर तुहाडी किस्मत ते मैटर करदा, ओके। बट अगर नेगेटिव मार्किंग है, मान लो तुहानूं 4 नंबर, ये तो तुसीं रीजनिंग में बेसिक्स पढ़िया ही होगा कॉन्सैप्ट कि 4 नंबर तुहानूं सही क्वेश्चन दे मिलन दे, 2 नंबर तुहानूं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। हुण अगर तुसीं कोई क्वेश्चन गलत कर दिने तुक्का ला के, तुहाडे 6 मार्क्स चल गए, ओके। नेगेटिव मार्किंग वाले और जो आने से नंबर 4 वो भी गए, ओके। तो इस तो अगर तुहानूं पता है ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तुक्के काम नहीं होंगे। हाँ ट्रिक भी वही स्टूडेंट ला सकते हैं जिन्होंने नॉलेज है, ओके। जिन्होंने पता कि 3 स्टेटमेंट दित्तियां ने, आ स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, उन्होंने पता क्यों पिछों किते ना किते सही स्टेटमेंट तक पहुंच ही जाते हैं, ओके। और हाँ फिर भी उन्होंने लगता हुआ कि मतलब कि दूसरी तीसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल नॉलेज नहीं, तो उन्होंने पता नेगेटिव मार्किंग है, वो स्किप कर देंगे। अपने जो क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सही किया उन्होंने नुकसान नहीं देंगे अपने इस क्वेश्चन करके। इस करके यहो जी गलतियां ना करके जाया करो, ठीक है। यहो जी शॉर्टकट ना देखा करो, एग्जाम क्लीयर करना स्मार्ट वर्क करो पर शॉर्टकट ना लभो, ओके। कॉन्सैप्ट पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, उन्हें अपडेटेड, ठीक है, जो चल रहा है वो बारे पढ़ो, ठीक है। और दूसरा मतलब इस सिस्टम में ना पाओ कि तुक्के लग जाएंगे, इदा का है नहीं। तुम आप ही देखा होना रिसेंटली जिन्ने भी एग्जाम हो रहे हैं वो ना ही मतलब तुहानूं सीधा पिछे जिदा कई इंस्टीट्यूट कह देंगे सी कि तुसीं किरण पब्लिकेशन पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, वो ही एग्जामिनर क्वेश्चन पाता, तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो भी वो वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। तो इस करके वो हमेशा एग्जामिनर की करते हैं कि हुण जिहड़े एग्जाम होंदे, ठीक है, पंजाब के एग्जाम का लैवल बहुत वधिया है। पहला की सी, हाँ ठीक है, मानते कि पहला मतलब एज इट इज़ पुराने क्वेश्चन पै जाते सी, बट हुण कोई पुराना क्वेश्चन नहीं पैंदा। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो भी जो हुणे रीसेंट होए जो रीसेंट एग्जाम होए उन्होंने क्वेश्चन देखो, लैवल देखो, ये नहीं देखो कि वो क्वेश्चन आया दोबारा वही क्वेश्चन आएगा, ये ना देखो, ये देखो कि वो किहड़े सबजैक्ट चो क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है, उन्होंने लैवल की क्वेश्चन का। मैं कहा बिल्कुल ही मतलब सिंपल क्वेश्चन पा रहे जिवें फुल फॉर्म्स पूछ ली, या फिर जिदा मान लो नीति योग है, वो नीति योग की फुल फॉर्म पूछ रहे या नीति योग नाल रिलेटेड की प्रोग्राम्स लॉन्च किए वो बारे पूछ रहे, ठीक है, कि स्कीम्स पूछ रहे हैं। तो एग्जाम का लैवल देखो कि जिदा एग्जाम होया, ठीक है, नायब तहसीलदार का एग्जाम होया,
उन्होंने जोग्राफी चो भी क्वेश्चन पूछे, हिस्टरी चो भी पूछे, पॉलिटी चो भी पूछे, इकनॉमिक्स चो भी पूछे, इकनॉमिक्स के बजट चो क्वेश्चन पूछे, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा सी। ठीक है, अगर तुम जीएस के क्वेश्चन भी सही तरीके नाल पढ़े हो, मैथ रीजन नहीं भी किया होया, 80 नंबर ये सी। ठीक है, 80 क्वेश्चन ये सी। ओके, तो ये भी डिपेंड करता इस करके जिदा हुण तुहाडा PPSP एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम है, एग्जाम देख लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना टॉपिक वाइज अगर तुसी टॉपिक भी पढ़े है ना ज़्यादा डिटेल से जाके नहीं, अगर एक्ट्स पढ़े एक्ट पाए है तो अगर तुसी एक्ट पढ़े फिर भी तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। नीति योग पढ़िया ना, नीति योग चो क्वेश्चन पाया। ठीक है, ਜਿਹੜੇ भी उन्होंने टॉपिक्स लिखे सी इंडियन इकोनॉमी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने क्वेश्चन पाए, पंजाब इकोनॉमी चो क्वेश्चन पाया। ओके, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ एक्साइज इंस्पैक्टर ਦਾ एग्जाम होना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने इंडस्ट्रीयल पोर्शन ਕੱਟਤਾ। ठीक है, ਵਧੀਆ ਗੱਲ भी है, बट इकनॉमिक्स ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ, GST, ਨੀਤੀ योग, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪੜੋ, ਬੇਸਿਕਸ ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और लास्ट 4-5 महीने के करंट अफेयर्स करो, ज़्यादा पहला स्टैटिक पोर्शन करो। ओके, और मैथ रीजनिंग तुहाडा जो तुसी करना। ठीक है, ठीक है, अगर पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर की अगर सिर्फ ऐसी क्लास लैनी है जिहदे मैं इंडियन इकोनॉमी कराऊंगी, पंजाब इकनॉमिक्स कराऊंगी, ठीक है, जिन्हें सिर्फ एक ही टॉपिक्स लैना वा। ओके, तो GST या टैक्सेशन वगैरह तो वो भी सारा कोर्स अवेलेबल है। ओके, ये अपडेटेड कराया जाएगा, पहला बेसिक्स करावांगे, उस तो बाद प्लस अपडेटेड जो भी उस टैक्स नाल रिलेटेड जो न्यूज़ में होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक, बाकी ओवरऑल अगर पूरे मतलब कोई भी एग्जाम देना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ओके, बाकी ਦਾ गिवन नंबर है, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ओके, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ प्रोजेक्ट सक्षम, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है, सबका विश्वास स्कीम, ग्रैंडफादर क्लाउज, सेंट्रल कोड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एंड सेंट्रल कोड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन्हां द्वारा किहड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिवें टैक्स नूं लैके कॉन्फ्लिक्ट रहिंदा है, ठीक है, उन्होंने रिजोल्व करने दे लई जो टैक्स पेयर है उन्होंने जो प्रोसैस है स्मूथ बनाने लई जो डायरैक्ट टैक्स डिपार्टमेंट और इनडायरैक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, दोनों होंगे डिपार्टमेंट रेवन्यू के अंडर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंडर होंगे। ठीक है, इन्हों के भी कई प्रोग्राम लॉन्च होंगे हैं, वो बारे पता होना चाहिए। ओके, OECD, ठीक है, टैक्स नाल रिलेटेड न्यूज़ में सी, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट न्यूज़ में होर भी बहुत सारिया नवीं टर्म्स आई हैं जो टैक्स नाल रिलेटेड है, तो उन्होंने बारे भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये मतलब न्यूज़ में है, जिवें एंजल टैक्स न्यूज़ में है क्यों है, ठीक है, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन आ जाता, तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते जे तुहानूं इन्हां दी नॉलेज है। ओके, तो शुरू करते हैं पहला बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स तो असीं करांगे कि मतलब हुंदा कि जिहड़ा तुहानूं बेसिक्स पता होना चाहिए, उस तो बाद असीं एडवांस लैवल ते जावांगे। ओके, हर एक टॉपिक इदा करांगे, ये नहीं तुसीं एक ही टॉपिक नूं ज़्यादा नहीं करना। जिद्दां मान लो इंडियन इकोनॉमी है, पंजाब इकोनॉमी है, GST नीति योग, ये नहीं मतलब तुम नीति योग फड़ के बह जाओ तो नीति योग नूं पढ़ी जा दे। ठीक है, कि नहीं अगर GST फड़ लिया तो GST पढ़ी जा रहे। ठीक है, उस GST चो एक ही क्वेश्चन आए, टैक्सेशन है, टैक्सेशन जो सीधा डायरैक्ट टैक्स इनडायरैक्ट ये जो क्वेश्चन ना पूछ के जो प्रोग्राम लॉन्च होए टैक्सेशन रिलेटेड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछ ले, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ पूछ ले कि ज़्यादा टैक्स ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ कलैक्ट होया, डायरैक्ट जो होया, इनडायरैक्ट जो होया, डायरैक्ट भी ਕਿਹੜੇ टाइप जो टैक्स ज़्यादा कलैक्ट होया ਉਹਦੇ बारे क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, उस तो भी अवेयर होना जरूरी है। ओके, बाकी जिदा मैं तुहानूं पहला भी कहती है कि तुसीं सैल्फ स्टडी करनी करो। ठीक है, तुसीं अपने मतलब किसी होर क्लासेस ज्वाइन करनी वो भी करो, बट
एक बार जो मैं क्लासेस करा रही हैं वो भी एक बार देख लिया करो, क्योंकि मेरी क्लासेस तो एक दो क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। तो इस करके इन्हें की है कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ फायदा है, पढ़ के जाया करो, और मतलब कि बेवकूफियां ना करो कि मतलब कि तुम तुक्के ला लो, या फिर मतलब कि तुम कोई कहे आप बुक पढ़ ले जो सारे क्वेश्चन आएंगे, इदा की बेवकूफी ना करो, क्योंकि 2 घंटे का पेपर ਤੁਹਾਡੀ फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। ये नहीं है कि मतलब तुम होर भी ऑफर मिलेंगे, ऑप्शन आएंगे, अपनी गलतियां घटाओ, ठीक है। तो ज़्यादा जिदा मैं तुम पहले समझाया तो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे मैं लैक्चर ही ज़्यादा दिता पूरी वीडियो बड़े समझने वाली गल्लां खुद समझो तो वधिया, ठीक है। नहीं तो मैनू दूजा जो मेरे स्टूडेंट इहो जी गलतियां करते हैं ना करके ਹੁੰਦਾ है कि तुम इन्ना पढ़ के गए, तुम 6 महीने तो तैयारी कर रहे हो, 6-7 महीने तो उस तो भी पहला तैयारी कर रहे, और जब बाद में तुम पेपर च सिली मिसटेक कर रहे हो तो ये गलती है, तुम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तुम ये नहीं कह सकते इस इंस्टीट्यूट ने इदा कराया, इस इंस्टीट्यूट ने कराया, या फिर मैं इस तरह का करवाया, ठीक है। तुम अपना देखो, अपना भी थोड़ा अपना दिमाग वगैरह अखा खुले रखो, कान खुले रखो कि असी की करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब टैक्स की होंगे, ठीक है। उस तो पहला टैक्स आया कितना, देखो सरकार देश चलाने लिए सरकार को की चाहिए होंगे, बजट चाहिए होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट से 2 चीज़ा होंगे, एक है रेवेन्यू, 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। दूसरा होंगे कैपिटल, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट होंगे कि पैसा, ठीक है, पैसा कितों कितों आया। ओके, कैपिटल बजट सरकार का होंगे कि सरकार के एसेट किहड़े आ, ठीक है, तो उहदी लायबिलिटी की ने, ठीक है। एसेट मतलब किहड़ी सरकार को प्रॉपर्टियां ने, ठीक है, जिन्होंने बेच के पैसे कट सकते हैं। लाइबिलिटी किहड़े बर्डन है जिहदा कर्जा वगैरह देने वाला, ठीक है, उन्होंने कहते कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कि जो सरकार को पैसा आया, ठीक है, तो सरकार को पैसा कितों आता है, एक है टैक्स, नॉन टैक्स, ठीक है। दूसरा ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, इनू सारे नू कहांगे रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब सरकार को जो पैसा आया। ओके, दूसरा हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हुण पैसा कलैक्ट करने लिए कोई खर्चा भी होया होगा, ठीक है, जिदा डिपार्टमेंट ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हुण उत्थे जिहड़े काम कर रहे हैं, जिहड़े टैक्स कलैक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो पैसे देने पै रहे, सैलरी देने पै रहे, तो उहदे भी तो खर्चे होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हुण गवर्नमेंट बजट है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है, ये हुण ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे, बस मैं दसना चाहती कि गवर्नमेंट बजट में जो रेवेन्यू बजट है उहदे विच, ठीक है, टैक्स जिहड़ा इहदा पार्ट है, ਇਹਦਾ मतलब जो गवर्नमेंट का सब तो रेवेन्यू सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, जिदा साडी कोई सोर्स ऑफ इनकम होंदी हर एक दी, कोई बिजनेस करता, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब च है, ठीक है, कोई अलग बिजनेस, सारे दे अलग बिजनेस होंदे, तो उहदे विच जिहड़ी इनकम आंदी, ठीक है, रेवेन्यू साडी किहड़ी साडी नौकरी तो आंदी। उसी तरह जो सरकार का जो रेवेन्यू आंदा, सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक टैक्स भी है, ठीक है, टैक्स, उहदे बारे असीं पढ़ांगे अज। तुहानूं बहुत पेशेंस चाहिए, जिद्दां मैं स्टार्टिंग में बोलिया कि कहोगे मैडम इन्ना सारा बोल गए, ठीक है, तो वो तुहाडे फायदे लिए बोलिया हुआ, उन्होंने भावें तुसीं स्पीड ना सुन लियो, ठीक है, उस तो बाद एक क्लास स्टार्ट हो जाती है, बट सुनियो जरूर, तुहाडे काम दा बाद च ओह जी मिसटेक ना करियो, स्पैशली जिहड़े स्टूडेंट्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। टैक्स, ठीक है, टैक्स की होंदा जिद्दां मैं हुणे दस्सिया कि सरकार जो पैसा कलैक्ट करती है, हुण सड़कां बनाउणियां वा, हैल्थ सर्विसेज, कई स्कीम्स लॉन्च करती है, उहदे लई सरकार नूं पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा जिहड़ा आंदा सरकार दा, उहदे विचों एक सोर्स है सरकार को टैक्स, ठीक है। टैक्स जिहड़ा कलैक्ट किया जाता सिटीजन को, इंडियन सिटीजन जो नागरिक है उन्होंने को पैसे कलैक्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ताकि वो पैसे नूं मतलब कि सरकार लोगों की भलाई के लिए ला सके। ओके, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज तुहानूं पता है टैक्स की होंदा। हुण टाइप्स ऑफ टैक्स की होंदा, डायरैक्ट टैक्स है, इनडायरैक्ट, 2 टाइप है, ठीक है। डायरैक्ट टैक्स बारे तुसीं जानते हो
कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि खुद टैक्स भरना पैंदा। जिद्दां मैं सैलरी गवर्नमेंट सैलरी लैनी है, ठीक है, तो मेरी इनकम चो सीधा टैक्स कटेगा, ठीक है, हो गया डायरैक्ट टैक्स। ये नहीं है कि मैं सैलरी लैनी है बट मेरे घर चो होर किसे जिहड़ा सदस्य है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टैक्स कटिया जाएगा। नहीं, जो इनकम लै रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ टैक्स कटिया जाएगा। ओके, डायरैक्ट टैक्स। उस तो अलावा अगर तुहानूं एग्जाम में लाइन होती वेयर द इंसीडेंट एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन सेम एंटिटी, ठीक है, हुण तुसीं डायरैक्ट टैक्स पढ़िया होगा। अगर इस तरह की कोई लाइन आती है तो एक इहदे नाल रिलेटेड डायरैक्ट टैक्स है। ये कहती है कि जदों इंसीडेंस और टैक्सेशन फॉल ऑन सेम एंटिटी, इंपैक्ट, इंसीडेंट एंड इंपैक्ट, इंसीडेंस इंपैक्ट जो सेम पर्सन ते होवे। ਇਹਦਾ मतलब ये है, इंसीडेंस का मतलब ये है कि किहदे उत्ते टैक्स इंपोज्ड होंदे आ, ठीक है, टैक्स किहदे उत्ते लगन दिया ते पे कौन करन दिया, ठीक है, पे कौन करन दिया। ਇਹਦਾ मतलब टैक्स ਜਿਹਦੇ उत्ते मतलब ਲੱਗਿਆ ਵਾ पे भी ਉਹੀ करेगा। ਇਹਦਾ मतलब इंसीडेंट इक्वल टू इंपैक्ट, ठीक है। एग्जाम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ इंसीडेंट इक्वल टू इंपैक्ट ਹੁੰਦਾ, डायरेक्ट टैक्स ਵਿੱਚ। ओके, नैक्सट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरैक्ट टैक्स ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, जीएसटी, ओके, जीएसटी एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी जिन्हां ते भी लगदा। ओके, ते इहदे विच इंपैक्ट ते इंसीडेंट इक्वल नहीं हुंदे, ठीक है। इंपैक्ट ते इंसीडेंट मतलब जिथे टैक्स पे लगन दिया जरूरी नहीं कि वही टैक्स पड़े दूसरे बंदे नूं कह सकदा, ठीक है। इहदे विच की है कि सारी लायबिलिटी बर्डन, ठीक है, उस इंसान ते हुंदा जिहने टैक्स पे करना। जो टैक्स पेयर है टैक्स सिर्फ वही पे करेगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਡਨ। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, मेथड ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। फॉर रेट्रोस्पेक्टिव नाल रिलेटेड ए न्यूज़ में सी टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। इस करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टैक्सेशन टॉपिक है और टैक्सेशन टॉपिक ना ये काफ़ी न्यूज़ में सी, इस करके तुहानूं इहदे बारे भी नॉलेज होनी चाहिए है। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स की हुंदा है, प्रोग्रेसिव टैक्स हुंदा कि जिवें जिवें तुहाडी इनकम वधी उदा उदा टैक्स वध गया, ठीक है। मैं ईजी वे ना तुहानूं कराऊंगी, वन लाइनर, मतलब कोई ज़्यादा मतलब दिमाग 'ਚ एक बार कहानी वाइज तुहानूं विच मतलब समझ आ जाएगा। ओके, ना तुहानूं इहदे लई पैराग्राफ लिखने, बस सिंपल की हुंदा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स हुंदा जिद्दां जिद्दां तुहाडी इनकम वधी उदा उदा टैक्स वधिया, ठीक है। तुहाडी इनकम दे अकॉर्डिंग डिपेंड करदा तुहाडी इनकम दा लैवल की है। तुसीं 5 लाख साल दा कमाउंदे हो, 10 लाख कमाउंदे, ओहदे अकॉर्डिंग तुहाडा टैक्स लैब हुंदा इक, ओहदे अकॉर्डिंग तुहानूं टैक्स लगेगा, ठीक है। जिद्दां जिद्दां इनकम वधेगी उदा दा टैक्स लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। हुण प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल की है, तुहानूं एग्जाम में आ सकता है। तुहानूं हुण ये तो पता डायरैक्ट टैक्स की हुंदा, इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदा, वो भी करांगे। वैसे इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदा जीएसटी, वो भी मैं समझावांगी, ठीक है। फिलहाल इत्थे है जो टॉपिक उहदा रिलेटेड करदे प्रोग्रेसिव टैक्स। हुण प्रोग्रेसिव टैक्स, डायरैक्ट टैक्स पर एग्जाम च पूछ सकते हैं डायरैक्ट टैक्स किहदा मेथड है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल या रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। ये की है प्रोग्रेसिव टैक्स। जिद्दां जिद्दां इनकम वधी, जिद्दां जिद्दां कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट जिद्दां कंपनी में तुहाडा प्रॉफिट वधिया उदां उदां तुहाडा टैक्स वध गया। ओके, रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स हुंदा कि कोई मतलब ये है कि जिद्दां तुहाडी इनकम वधी तुहाडा टैक्स रिड्यूस हो गया। हुण इनकम वधन नाल टैक्स किद्दां रिड्यूस हो गया, ठीक है। मान लो कोई चीज़ 18% स्लैब में सी, ठीक है, तुहानूं पता है ये 5 स्लैब ने, 5%, ठीक है, 12%, 18, 28%। मान लो 18% में कोई सी, मान लो कुछ भी एसी है, ठीक है, 18% में सी। ओके, कुकिंग गैस मान लो कुछ भी, चलो कुकिंग गैस मान लो, क्योंकि कुकिंग गैस ते भी टैक्स लगता, पेट्रोलियम ते डीजल ते नहीं लगता। ये भी दसांगी मैं अगे जाके कितने टैक्स मतलब जीएसटी जिहड़ा स्लैब लगता वो भी जानना जरूरी है तुहाडे लई। क्लियर क्वेश्चन लेंदे आ कि 0% जीएसटी कितने लगता, 5% कितने लगता, ठीक है, या फिर कितने नहीं लगता। हम कुकिंग गैस है मान लो तो 18% जीएसटी लगन दिया। हुण जिहदी ते इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो है कि सालाना
200-300 करोड़ जिहदा टर्नओवर है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ कुकिंग गैस 18% देना कोई औखा काम नहीं है, ठीक है। पर ਜਿਹਦੀ इनकम 10,000 है, 20,000 है, सालाना 50,000 है, ਉਹਦੇ ਲਈ 18% स्लैब ਜਿਹੜਾ महंगा, 0% ठीक होगा, 5% ठीक होगा, 18% ਜਿਹੜਾ GST स्लैब है, GST, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ महंगा है। इस करके रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, कि इनकम ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ओके, समझ आया रिग्रेसिव टैक्स की ਹੁੰਦਾ। और रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल की है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिदा एक जिदा हुणे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹੀ ਸਭ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, जीएसटी जेड़ा वा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोग्रेसिव टैक्स भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ਹੁਣ प्रोपोर्शनल टैक्स ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ठीक है, टैक्स जो है वो फिक्स्ड है, जिमें 12%, 28%, 5%, ठीक है, जिन्ना भी ये सारा फिक्स है, इनकम का मतलब नहीं है, ठीक है, कि जितना इसकी इनकम वधी तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक किस्म का ਜਿਹੜਾ जीएसटी और रिग्रेसिव टैक्स भी है, ठीक है, इनकम वधी तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ टैक्स देना सौखा हो गया, 5%, 18%, ठीक है, 18% जिदा प्रोग्रेसिव टैक्स है कि 18% टैक्स देना अमीर आदमी लिए सौखा है, 18% टैक्स देना गरीब आदमी लिए औखा है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स विच भी इस तरह ही है, पर प्रोपोर्शनल टैक्स विच इनकम का कोई रोल नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ टैक्स फिक्स करता उन्होंने 12%, 28%, 5%, कोई फर्क नहीं पैंदा ਤੁਹਾਡੀ इनकम कितनी है नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देना ही पवेगा। ओके, इस करके जीएसटी ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रोपोर्शनल टैक्स ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ और रिग्रेसिव टैक्स ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ने, सेम ने, फर्क सिर्फ इन्ना है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टैक्स ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ कि इनकम का मैटर नहीं करती, इनकम नहीं ली जाती, ये सिंपल है किसी टैक्स फिक्स करता तुसी जिद्दां मर्जी जुगाड़ ला के ये टैक्स पूरा करना, ठीक है, तू ये चीज़ लैनी लो नहीं लैनी ना लो, ठीक है, इस तरह। हुण सरकार ने ये फायदे की मतलब ऑब्जेक्टिव की सी ना सारे लियाते प्रोग्रेसिव टैक्स उन्होंने इस करके लिया हुण जिहड़े वड्डे अमीर लोग है, ठीक है, हुण उन्हां दी इनकम वधदी जांदी है, ठीक है, तो उस इनकम में थोड़ा जिहा जिद्दां गरीब लोग है उन्हां दी इनकम ज़्यादा नहीं वधदी अमीर लोगों की जिन्नी इनकम वधदी, तो उन्होंने थोड़ा जिहा वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें रोकने लई उन्होंने ये लिया सी प्रोग्रेसिव टैक्स, जिद्दां तुहाडी इनकम वधदी जाएगी तुहानूं टैक्स देना पएगा। बट प्रोग्रेसिव टैक्स के मतलब लोग खिलाफ भी सी क्योंकि वो कहते कि ये तो साडी कमाई है, साडी इनकम है, अगर तुसीं टैक्स वधाओगे साडी इनकम भी तो घट रही है। ओके, ते रिग्रेसिव टैक्स प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव टैक्स तां लिआंदा गया सी कि मतलब कि हुण ये कि एक टैक्स है वो भावें अमीर है गरीब है दोवां नूं देना पड़ेगा, ये कोई भेदभाव है नहीं। बट ये कहा गया सी कि जो लग्जरी आइटम्स ने जिवें कार है असीं वॉचिस भी लेने वो भी बहुत महंगियां होंदियां उन्हां ते ज़्यादा टैक्स लाउणा चाहीदा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि एक हिसाब तो भी प्रोग्रेसिव टैक्स ही बन जाएगा फिर, ठीक है, ज़्यादा उन्होंने मतलब की लाना चाहिए टैक्स लाना चाहिए। बट उही फिर के उही गल आ जाती है कि किसी की इनकम है, ठीक है, उत्ते तुसीं ज़्यादा टैक्स लाई जाओगे वो तो फिर कमाएगा ही नहीं कि ज़्यादा इनकम है टैक्स भी तो ज़्यादा लगन दिया। ओके, ये हो गए, समझ आ गया रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स से प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ये न्यूज़ में जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन देखो पॉलिटी में मान लो एक सिंपल लैंग्वेज समझानी है कि मान लो तुसी जो 10 साल दे सी 10 ईयर दे सी तुसी किस तरह मर्डर किया, ठीक है, 10 साल दे मर्डर किया और कानून अज बनया 2022 च कानून बनया कि 10 साल के बच्चे अगर 10 साल के बच्चे भी मर्डर करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उम्र कैद की सजा होगी, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ पूरी जिंदगी की इंप्रीजनमेंट होएगी, ठीक है, उम्र कैद की सजा होगी पूरी जिंदगी की, ठीक है। हुण कोई ये है उन्हें मर्डर किया सी जो 10 साल का ही हुण हो गया 25 साल का, ठीक है, हुण कवे जाके कि लो तुसीं बनाया, ठीक है, तो मैं 10 साल का सी मेरे को मर्डर हो गया सी मैनूं सजा दो, ठीक है, तो कोर्ट की कहेगी कि नहीं जो लॉ है वो 2022 तो लगूगा, मान लो 1 अप्रैल तो लग गया, 1 अप्रैल 2022 तो कानून लागू हो गया कि 10 साल की उम्र तो थले वाले
अगर किसी ने भी मर्डर किया तो उन्होंने सारी उम्र मतलब जेल च कटनी पेगी। ओके, हुण कानून बना 1 अप्रैल 2022, ਜਿਹੜਾ ए है ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣੇ पर वो पिछले भी अगर तुसी फ्रॉड किए वो भी गिने जाएंगे। मान लो कानून अज बनया कि चोरी की है, मतलब चोरी ते कोई नवा कानून बनया, पर तुम पास्ट में चोरी की, बैंक लुटिया, तो मतलब ये थोड़ी तुहानू सजा नहीं होएगी, ठीक है, सजा तां भी होएगी। उससे नाल रेट्रोस्पेक्टिव की है कि मान लो 1 अप्रैल 2020 नू मतलब लॉ बनया, नवा टैक्स नाल रिलेटेड कोई रूल बनाया, ठीक है। हुण पिछे किसी ने और मतलब टैक्स जो नवा रूल बनाया ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ मतलब ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ कोई चोरी की है या फ्रॉड किया, भावें कानून अज बनन दिया, भावें कानून 1 अप्रैल नूं बनन दिया या फिर अज बनन दिया, ते अज तो लागू भावें अज तो होवे, बट सज़ा तुहानूं पिछले भी टैक्स की अगर तुसीं फ्रॉड किया ओहदी मिलेगी, ठीक है। रेट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन इस करके लिआंदा सी कि मान लो सरकार नूं बाद च लेट समझ आई कि सानूं ये कानून बनाना चाहिए सी, लोगों ने तो मतलब बिजनेसमैन ने तो यदा बहुत ज़्यादा लूप यूज़ किया सिस्टम का, लूप होल का, ठीक है, जो सिस्टम दी कमियां सी उन्होंने यूज़ किया, बट लॉ अज बनया, बट यदा मतलब ये नहीं उन्होंने तो लागू नहीं होएगा, ठीक है। रेट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन का मतलब कानून भावें अज लागू होया वा टैक्स नाल रिलेटेड, बट उन्होंने अगर पिछे किसी ने उन्होंने रिलेटेड क्राइम किया तां भी उन्होंने सज़ा मिलेगी उस कानून के अकॉर्डिंग जो अज बनया। ओके, समझ आ गया? नहीं भी समझ आया तो तुसी कमेंट बॉक्स से लिख दस सकते हो, और बाकी सारे गिवन नंबर है, कोई भी डाउट है तुसी पूछ सकते हो। ओके, बाकी असीं इन्हां नूं डिटेल में जो असीं क्लासिस विच करावांगे मैं इन्हां नूं होर डिटेल में समझावांगी। ओके, उहदे विच असीं टैक्सेशन लॉ बारे भी पढ़ांगे डिटेल में, ठीक है। बाकी वैसे तो होर भी क्वेश्चन अगे भी डिटेल च कराने सी, मतलब एक क्लास है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेंगे, फिर बच्चे कई बार यही सोच के नहीं पढ़ते घंटे की क्लास नहीं है, तो इस करके शॉर्ट क्लासेस लियावांगे ताकि तुसी वधिया तरीके नाल जल्दी रिवीजन कर सको, ठीक है। तुहानूं ये ना लगे कि इन्नी देर बहना पैंदा, वैसे तुहानूं कंसनट्रेशन वधानी पैनी है, अपना टाइमिंग शेड्यूल बना के टारगेट बना के पढ़ो। ओके, बाकी कोई भी डाउट है तुहानूं साडे गिवन नंबर है इस ते कॉल कर सकते हो तुसी, ठीक है। इन्हां नंबरां ते तुसी की कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तुहानूं कोई भी डाउट है, ठीक है। साडा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो पूरा कोर्स भी अवेलेबल है अगर तुसी कंप्लीट तैयारी करनी है, कंप्लीट टॉपिक भी, और उस तो अलावा अगर सिर्फ तुसी अगर तुसी सिर्फ टैक्सेशन की तैयारी करनी है, ठीक है, ਉਹਦੇ लिए भी कोर्स अवेलेबल है। अगर तुसी बाकी पंजाब जीके, ठीक है, कंप्यूटर दी या फिर बाकी जो जीएस के सब्जैक्ट है, पॉलिटी हिस्ट्री, उन्हां दी तैयारी करनी तो वो भी साडे कोर्स अवेलेबल ने। ओके, बाकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰੀ मैं बहुत मतलब ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत टाइम वेस्ट होया होगा, बट ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ मैं ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ नहीं दूंगी, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ क्योंकि स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स ਕੀਤੀਆਂ, बहुत ईजी क्वेश्चन, सही क्वेश्चन जो उन्होंने कॉपी में लिखे हुए सी जो मैं कराए सी वो भी गलत करके आए ने, इस करके दसना जरूरी सी। बाकी इस तो बाद असीं जिहड़े भी क्वेश्चन हुण करांगे इस तो बाद मैं तुहानूं क्वेश्चंस करावांगी, बाकी चीज़ां समझावांगी। ओके, थैंक यू सो मच।